Hello students, I chemistry coach Avinash Jaiswal. Welcome you all on my YouTube channel. I hope you are doing good and are healthy and sound. So students, in today's segment of topic of the day, we are going to learn about how to use a log table. Values of log plays an important role in the calculations of class 11th and 12th. We are not going into detailing of mathematical function of log. We are simply learning how to use a log table. For example, a basic formula to calculate pH involves minus log concentration of hydronium ion. And if you don't know how to use the log table, you cannot calculate pH of the solution. And this type of question plays an extremely important part in the chapter of equilibrium, class 7, which is immensely important for the competitive exams like NEET, NDA, IITG, etc. So students, before going to proceed how to see a log table, we need to learn some of the basic identities in which we see that log base xy is equals to log x plus y. मल्टीप्लाई में जो होगा वो प्लस में टूटेगा. Log base x upon y will split into log x minus y. Similarly, log x की power y will split into y log x. And you should also learn that log 10 is equal to 1. So students, to learn how to use a log table, you need to write these formulas, these identities in your copy or register and see the coming video with full attention. Use a pen and paper. You can also check the values after solving with the help of calculator. Let us see how a log table look like. Front side it contains log and at the back side it contains anti-log. The log table contains vertical columns and horizontal rows. Vertical columns will begin with 10 and ends at 99. Horizontal rows contains values from 0 to 9. After that, a mean table is also given, which we will not use in the current section. Now, you cannot see values from the log table easily. So, I have mentioned some of the values at the board. Now, let us learn how to use a log table. So, students, let us suppose a standard value. आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू एज्यूम कर लेनी है. सपोज कीजिए आपको दिया गया है log x डॉट वाई जेड. आप उसको किसी संख्या में मान सकते हैं 1.23, 2.12. आपको x y की वैल्यू को बेटा z में देखना है. वैल्यू ऑफ x y को किस में देखना है बेटा? z में. मैं बताऊंगा अभी कैसे. और जो भी डिजिट आएगी वो 4 वैल्यूज की होगी और उससे पहले आपको 0 लगाना होगा. ये छोटा सा रूल आपको ध्यान रखना है. आपको गिवन डिजिट हमेशा x डॉट वाई जेड की फॉर्म में हो. x y की वैल्यू को आपको z में देखना है. एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल. log 1.23, log 12.3, log 123, log 0.123. इस प्रकार की बहुत सी वैल्यूज हैं. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इससे ज्यादा वैल्यू हुई, तो बेटा राउंडिंग ऑफ के रूल आपको पता है, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं. बिल्कुल सिंपल तरीके से. अब होना क्या है, स्टार्टिंग की 2 डिजिट यानी कि एक्स वाई फॉर्म की थर्ड में देखनी है वैल्यू. यानी 1.2 यानी 12 की वैल्यू को आपको किस में देखना है बेटा? 3 में. तो क्या संख्या आई बेटा? log 1.23 की वैल्यू आई 0.0899. देखिए बेटा कितना सिंपल काम था. आपको हमेशा अपने डिजिट को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हमेशा 4 डिजिट की वैल्यू आएगी और उससे पहले आपको पॉइंट लगा देना है. अब यहां देखिए क्या बेटा log 12.3 को 1.23 इंटू 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. पीछे आइडेंटिटीज पढ़ी हमने कि मल्टीप्लाई में जब दे रखा हो इस तरीके से log, तो वो प्लस में स्प्लिट होता है. बिल्कुल होता है. log 10 की वैल्यू होती है 1 स्टूडेंट्स. 1.23 की वैल्यू 0.0899.
log 10 की वैल्यू 1 और ये हो गया 1.0899। आप देख सकते हैं कि 1.23 से जैसे ही 10 गुना बड़ी वैल्यू यहाँ पर 1 लग गया। अब आप देखिए आगे क्या होता है। क्या log 123 को मैं चाहूं तो 1.23 इंटू 100 लिख दूं बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत है सर। log 1.23 प्लस log 100 की जगह मैं log 10 की पावर 2 लिख देता हूं बेटा। अब 1.23 की वैल्यू फिर से वही है 0.0899 प्लस 2 log 10। log 10 की वैल्यू फिर से 1, पावर बाहर आ जाती है, पीछे पढ़ा है हमने, तो ये आ गया 2.0899। अब यहां से स्टूडेंट्स आप एक शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं। अगर भाई 1.23 की फॉर्म में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से काम चल रहा है। लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या तो 1 तो आएगा। अगर डिजिट पॉइंट से पहले 2 है तो यहाँ 1, और डिजिट अगर पॉइंट से पहले 3 है तो यहाँ 2, डिजिट अगर पॉइंट से पहले 4 हुई तो 3, और 5 हुई तो 4। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि भाई ये कैसे होगा, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। log 0.123 को मैं 1.23 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकता हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लाई है बेटा, आप इसको प्लस में स्प्लिट कीजिए। 1.23 की वैल्यू 0.0899, देखिए लिखते लिखते 1 भी आ गया हमको, और माइनस बाहर आ गया तो ये बन गया माइनस log 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। अब आपको क्या करना है, 1 में से आप 0.0899 को घटा दीजिए, 999 और ये 10, 1 0 1 0 0, तो माइनस का 0.0101 आपकी वैल्यू आ गई। बहुत ध्यान से देखिए, फिर से रिवाइंड कीजिए, और चाहिए तो इस वैल्यू को आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल के देख लीजिए बेटा। डिजिट्स आगे भी हो सकती है, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अंतर आंसर में नहीं पड़ता है, बहुत माइनर सा अंतर पड़ेगा, वैसे ही वैल्यूज लॉग की बहुत छोटी होती है बेटा। आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी तरह के बेटा। एग्जाम्पल इतने कराए जाएंगे आपको कि किसी भी तरह की संख्या में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पर ध्यान रखना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बदलनी है आपको। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। log 1.34 log 13.41, एक संख्या बढ़ा ली है बेटा, log 134 और log 0.00134। अपने ही नियम को और अच्छे से समझने के लिए log 1.34 में 13 की वैल्यू 4 में देखनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपसे कही है x डॉट बाई z, यानी कि 1.1 संख्या के बाद पॉइंट और उसके बाद 2 डिजिट। तो 13 की वैल्यू को बेटा 4 में देखना है, 0 1 2 3 4। तो 13 की वैल्यू 4 में क्या आई बेटा? 1271। लॉग टेबल पर ध्यान से देखनी है। तो ये वैल्यू आई बेटा हमारी 0.1271। किसकी वैल्यू है बेटा? ये log 1.34 की वैल्यू आई 0.1271। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 13.41 है तो हम उसको 13.4 पे एज्यूम कर सकते हैं। क्या 13.4 को 1.34 इंटू 10 लिख सकते हैं बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। log 1.34 प्लस log 10, 1.34 में 13 की वैल्यू 4 में 0.1271 प्लस 1 1.1271। जैसा पीछे पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही, डिजिट 2 हो गई तो पॉइंट से पहले 1 आएगा, डिजिट अगर 1 है तो पॉइंट से पहले 0। क्या 134 को
log 1.34 इंटू 10 करके लिखना बेटा, सॉरी 10 नहीं 100 आएगा, लिख सकते हैं, पीछे की अभी कभी सीखा है बेटा हमने। तो ये बना log 1.34 प्लस log 10 की पावर 2, इसकी वैल्यू हमें बताई है बेटा 0.1271 प्लस 2 log 10 हो जाएगा 2.1271, ये इसकी वैल्यू हो गई बेटा। अब इस वाले को देखिए 1 2 3 4 5, सही है, अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो। अब मुझे यहाँ पॉइंट चाहिए, तो ये बचेगा 10 की पावर 3 यानी ये बना log 1.34 ऊपर जाके इंटू 10 की पावर -3। बताइए कोई दिक्कत है तो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। log 1.34 प्लस log 10 की पावर -3, 1.34 की वैल्यू है 0.1271 -3 log 10, 0.1271 माइनस का 3। अब आप 3 में से इसको माइनस कर लीजिए, आपका नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। कुछ और सिंपल एग्जांपल देखते हैं बेटा। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, कोई आपको वैल्यू देता है इस प्रकार से कि बेटा मुझे log 2 की वैल्यू बता, मुझे log 5 की वैल्यू बता, मुझे log 7 की वैल्यू बता। तो आपको क्या करना है बेटा, इस फॉर्म में लाने के लिए 0.00 0.00 0.00, 20 की वैल्यू 0 में, बहुत ही सिंपल, 50 की वैल्यू 0 में, 70 की वैल्यू 0 में, बहुत ही सिंपल। जब log 2 की वैल्यू देखेंगे बेटा तो ये 0.3010 निकल कर आएगी। log 5 की मैं देखता हूँ 50 की वैल्यू 0 में, तो ये है बेटा 0.6990। ऐसे ही 70 की वैल्यू 0 में बेटा 0.8451। इस प्रकार से बेटा आप log को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दो डिजिट्स देता हूँ जिनका log आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। log 7.54 की वैल्यू बताइए बेटा, log 6.02 इंटू 10 की पावर 23 की क्या वैल्यू आएगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ये काम आएगा आपके 11th ट्वेल्थ में, बहुत ज़्यादा यूज होता है बेटा इसका। साथ में मैं इसके अगले पार्ट में आपको एंटी लॉग भी सिखाऊंगा, अभी एकदम से कराने में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो पार्ट 1 लॉग सिखा दिया, पार्ट 2 में आपको एंटी लॉग सिखाएंगे, इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें भी लगता है क्या फीडबैक आ रहा है। कोई भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कोई फीडबैक हो आप दे सकते हैं उसको, नीचे दिए गए मेरे नंबर पर और मेल पर। थैंक यू, पढ़ते रहिए, जय हिंद।